Hello students. So today we are going to start our new chapter, the classification of business activities, chapter 3rd. Yesterday we have completed a second chapter. Okay, so let's start the new chapter, the classification of business activities. So all of you know the business activities we have already discussed. Okay, so here the business activities is actually divided into the two forms, that is industry and commerce. Okay, so all of you are very familiar with these words, industry and commerce, and industry actually plays a very important role in our business. Okay, and what is the main work of industry is just underline that it's changing the form of goods from any stage, from raw material into the finished products. Okay, when our raw material is changed into the finished products, okay, these all the process are come under the industries. Okay, so yes, very important paragraph, that industry involves the production of both consumer goods and the producer goods. Now what is consumer goods and what is producer goods? Consumer goods are those goods which can be used by directly. Okay, जिनको क्या है आप डायरेक्टली यूज़ करते हो, जैसे आप शॉप पे जाते हो, आपने ब्रेड लिया, उसको खाया, आपने यूज़ किया, ठीक है, बटर क्लॉथ आपने लिया, उसको पहना, दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स. ओके ना, व्हाट इज़ प्रोड्यूसर गुड्स? जिसको बनाया जा रहा है किसी फैक्ट्री में, ओके, by help of machinery, equipment, and then आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स. ओके, सो कभी कभी ये एक मार्क्स में आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स. सो एक्सप्लेन इट एंड जस्ट राइट वन एग्जाम्पल. Next is the characteristics. Okay, so the first is economic activity. Yes, we all know the meaning of economic activity is that its main purpose is to main objective is to earn profit. Okay, next is production. Production is involves various types of goods and services to satisfy human wants. हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके लिए मेन पर्पस क्या होता है हमारा, कि हम अपने जो लोग हैं उनको सेटिस्फाई करें. नेक्स्ट इज वाइड स्कोप. Yes, it's a wide scope because when we produce our products with the help of the new technology, new investment and new advancements. Okay, next is creation of utility. Creation of utility means that by we were converting raw material into useful products and which can be used to satisfy human wants. ओके, मैं इसका मतलब आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि रॉ मटेरियल टू यूजफुल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया. जो मैंने आपको एक पेन का एग्जांपल दिया था कि हमारे रॉ मटेरियल हो गए कि प्लास्टिक है, रिफिल है, देन इंक है, तो ये क्या हो गया, दीज ऑल आर द रॉ मटेरियल्स, और जब हम इनको बना के तैयार करते हैं एंड इट इज कॉल्ड फिनिश प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Industries accelerate the pace of economic growth by making productive use of natural and man-made resources, and it is the engine of growth. Why it is called the engine of growth? ठीक है, बिकॉज किसी भी इंडस्ट्री जब कोई सेटअप होती है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि इट दे जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट. ओके, आपको अपनी कंपनी में प्रोडक्शन को बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगा, लोग आएंगे, देन उसका आपका प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा, आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा, आप उसके नेशनल आप क्या करेंगे, इंडिया के नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करेंगे. और अगर आपको वही प्रोडक्ट क्या है, अगर इम्पोर्ट होता है, सॉरी एक्सपोर्ट होता है, तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगी, फॉरेन करेंसी मिलेगी. ठीक है, नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ अ बिजनेस. yes, we have already discussed that industry is actually a very important and major part of a business. Okay, and industrial activities give rise to the other business activities such as trade and aids to trade. Next is the type of industries. Okay, so type of industries is classified into the two broad categories, primary, secondary. Okay, the first we discuss primary industries. Primary industry in first is genetic and second is extractive. Now what is genetic and extractive? Genetic is जो क्या है, the industry is concerned with breeding of certain species of plants and animals with the object of earning profit from their sale. Plants, nurseries, poultry farms, cattle breeding farms, dairying, farming, fish hatcheries and फॉरेस्ट्री आर एग्जाम्पल ऑफ द जेनेटिक इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो ये क्या है कि जैसे गाय पालना, मुर्गी का पालना है, ब्रीडिंग करना, डेयरी फार्म खोलना, तो ये सब क्या हो गया, ये हमारे जेनेटिक इंडस्ट्रीज हो गए. ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, एक्सट्रैक्टिव, जिसको आप क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट करके निकालते हो ज़मीन से, सॉइल से. ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया.
माइनिंग हो गई, ये सब क्या हो गई, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ हो गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट इज अगेन इम्पॉर्टेंट, देयर इज अ वन डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। जेनेटिक में क्या हो जाता है, जेनेटिक में जैसे अब मैंने आपको एग्जांपल बताया पोल्ट्री फार्म, ठीक है, जिसमें आप गाय को पालते हो, भैंस को पालते हो, या मुर्गी है, या ठीक है डेयरी फार्म है आपकी, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इसमें लाइन दी है, मैन नॉट ओनली एड्स टू वेल्थ बट रिप्रोड्यूस द नेचर ऑफ, हाँ रिप्रोड्यूस द नेचर मेड गुड्स, यानी कि आप उस चीज़ को बढ़ा सकते हो, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, आप उसको अच्छा चारा दे के आपको अच्छा दूध मिल सकता है उससे, ठीक है, तो आप उसमें बेटर कर सकते हो। लेकिन एक्सट्रैक्टिव में क्या है, जितना माइन है, जितना आप उसको एक्सट्रैक्ट करोगे, मतलब माइन जितना है उतना ही निकलेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि आप उसको और अंदर तक डिग करोगे तो उसमें से और निकलेगा, तो वो क्या है, वो एक लिमिट हो गई उसमें, ठीक है। तो क्या लिखा है, इन द केस ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मैन कैन नॉट ऐड टू द वेल्थ, उसमें आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, उसमें जितनी माइनिंग है, जितनी एक्सट्रैक्टिव आप उतना ही कर सकते हो, ठीक है। विड्रॉस फ्रॉम द अर्थ सी एंड एयर, बट जेनेटिक में क्या है, मैन नॉट ओनली एड्स to wealth but reproduce the nature made goods. Okay, so now come to the next, the secondary industries. Industry which use the materials provided by primary industry are called secondary industries, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री से जो भी मटेरियल क्या होता है हम यूज़ करते हैं, कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। दे आर टू टाइप, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। एक बार अच्छे से आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, आपको फिर भी कोई डाउट लगता है यू कैन कमेंट भी इन द कमेंट सेक्शन कि मैम ये एक्सप्लेन कर दीजिए, इसको समझ में नहीं आया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट मैंने पढ़ा दिया या कुछ ऐसा टर्म रह गया कि जो आपको समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने बस सिर्फ एक टॉपिक लेके आपको बेसिक बेसिक चीज़ें थी वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, सो द नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नाम से ही समझ आ रहा है कि क्या है। ओके, these industries are concerned with the processing of transformation of raw material and semi finished products into the finished product, यानी कि वो इंडस्ट्री जहाँ पे क्या है, तो हमारे रॉ मटेरियल से हम अपने फिनिश प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है, वो हो गए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सच इंडस्ट्रीज चेंज द शेप एंड फॉर्म ऑफ मटेरियल्स प्रोड्यूस बाय जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, यानी कि जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव से हम चीज़ें निकालते हैं, उसको बनाते हैं, क्या हम एज इट इज़ उसको मार्केट में सेल कर देते हैं, नहीं, हम उसको क्या करते हैं, हम उस चीज़ को निकाल के पहले हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में लाते हैं, उसको अच्छे से हम बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिर ही हम उसको जो है यूज़ करते हैं। ओके, द आयरन, देखिए, ओके, फॉर इंस्टेंस द आयरन ओर एक्सट्रैक्टेड थ्रू माइनिंग इज कन्वर्टेड इनटू स्टील. Engineering, cement, sugar, textile, jute, etc. are the main examples of the manufacturing industries. Okay, so manufacturing industries are following types. ये भी क्या है, इसमें इसका एक चार्ट बना लीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करा दूँगी, तो इससे क्या होगा, आप कभी भूलेंगे नहीं, आपको एक प्रॉपर तरीके से याद हो जाएगा कि क्लासिफिकेशन में पहले बिजनेस था, बिजनेस को हैव डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, देन इंडस्ट्री इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, आई विल शो यू कि हाउ यू कैन मेक इट। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे जो है लिख लेंगे कि मतलब पूरा यहाँ पे कि बिजनेस है एंड ऑल, ठीक है, फिर इसको आप यहाँ से कैटेगराइज कर देंगे, ठीक है, कि यहाँ पे फिर आपने लिखा इंडस्ट्रीज़ एंड फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉमर्स, ठीक है, फिर इंडस्ट्रीज़ को आपने फिर डिवाइड कर दिया। ओके, तो इस तरीके से क्या है, आप पूरा अपना चार्ट बना सकते हैं। ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, थोड़ा साफ बना लीजिएगा आप। Okay, so the next is analytical. Analytical manufacturing industry. A basic raw material is broken into the several useful materials. For example, in oil refinery, crude oil is refined and several petroleum products are obtained. ये हो गया आपका एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसमें क्या होता है, जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है उनको तोड़ के उनको ब्रोक करके क्या है, हम एक यूजफुल मटेरियल को बनाते हैं। नेक्स्ट हो गया सिंथेटिकल। सिंथेटिकल इंडस्ट्री, टू और मोर मटेरियल्स आर मिक्स टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, हम किसी जब दो तीन प्रोडक्ट को मिला के जब हम नया प्रोडक्ट बनाते हैं, कॉस्मेटिक्स हो, सीमेंट, फर्टिलाइजर, पेंट एक्सेट्रा, होगा सिंथेटिकल।
नेक्स्ट प्रोसेसिंग, अ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस, यानी कि जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें 2-3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि पहले ये प्रोसेस होगा फिर इसके बाद इसमें, फिर दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. Like cotton textile, cotton passes through the spinning, weaving, dyeing, bleaching and then printing process. Assembling, manufactured components or parts are combined together mechanically or chemically to produce a new product. For example, manufacture of radios, यानी कि किसी का केमिकल की मैकेनिकली यानी कि मैनमेड के थ्रू यूज़ किया जा रहा है उसको, तो दैट इज़ कॉल्ड असेंबलिंग. जब आप दो तरह की चीज़ों को आप उसको जोड़ रहे हो, असेंबल कर रहे हो. ठीक है. Okay, so here the chart is given actually. You can see that industries, industry, genetic and extractive, manufacturing and construction, okay, and manufacturing, analytical, synthetical, processing and assembly. Okay, now come to the second last part of industry, that is construction. Construction industries. These industries are engaged in the construction, erection and fabrication of buildings, bridges, roads, dams, canals, etc. They utilize the products of manufacturing industries such as bricks, steel, cement, etc. These industries create the basic infrastructure through the process of fabrication. The distinctive feature of these industries is that their products remain fixed at one place and cannot be taken physically to the market for sale. Products of construction industries are very durable. Okay, on the basis of size and scale of operations, इंडस्ट्रीज में भी क्लास. ओके, सो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज क्या हुए कि वो इंडस्ट्रीज जो क्या करती है थ्रू विद द हेल्प ऑफ द फैब्रिकेशन, विद द प्रोसेस ऑफ फैब्रिकेशन वो अपने प्रोडक्ट को बनाती है. ओके, लाइक ब्रिक, स्टील, सीमेंट. ओके, ये सब प्रोसेस कंस्ट्रक्ट होके आती हैं, उनको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. सो अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में क्या बताया, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज. Under the micro, small and medium enterprise, very very important, just underline and learn the act also, Development Act 2006. Micro unit means a unit where an investment in plant and machinery is up to 25 lakh in case of manufacturing and up to 10 lakh in case of service enterprise. ओके, इसका माइक्रो, इसका ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि माइक्रो यूनिट का मतलब क्या होगा कि हम उस पर कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, 25 लाख तक. ओके, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और उसकी सर्विस में हम सिर्फ 10 लाख रुपए तक की उसका यूज़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. स्मॉल में क्या हो गया, अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वेयर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट्स एंड मशीनरी इज मोर देन 25 लाख बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़. ओके, इन केस ऑफ सर्विस एंटरप्राइजेस दीज लिमिट्स आर 10 लाख एंड 2 करोड़ रिस्पेक्टिवली. मीडियम में क्या होगा, मीडियम में हम कितना कर सकते हैं, मोर देन 5 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़. ओके, and service enterprise limits are 2 crore and 5 crore. Large unit में more than we can exceed 10 crore. Okay, so these four are the क्या है, these all are the micro, small and medium enterprises जिनका अपना क्या है, एक लिमिटेशन है कि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ में कितना प्लांट एंड मशीनरी में मैन्युफैक्चरिंग पे कर सकते हैं और अपनी सर्विस पे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो अपनी इंडस्ट्री में नहीं लगा सकते. नेक्स्ट इज रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 to 4 मार्क्स में आता है ये. ओके, ओके, सो द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया. द फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट. ये सबसे बड़ी चीज़ है एम्प्लॉयमेंट. स्मॉल स्केल की वजह से क्या होगा, ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है. लेबर इंटेंसिव मीन्स जिसमें क्या है, बाय यूज़ ऑफ लेबर हम अपनी टेक्निकलिटी को, अपने प्रोडक्ट को हम उसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. बिकॉज दे हैव अ हाई पोटेंशियल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट ऑफ कैपिटल. सबसे ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का क्या है कि वो लोगों को क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट देती है. ओके, next is balanced regional development. Small scale industries promote decentralized development and to help to remove regional disparities in industrialization. Disparities मतलब क्या हो गया कि लोगों में disparity करना, लोगों में भेदभाव करना, वो कम करती है. Development of small scale industry leads to industrialization rural areas. Decentralized development contributes to the process of self-sustained growth and avoids concentration of industries in particular areas. By providing employment in rural areas, they
help to check migration and overcrowding in urban areas. Small scale firms can be useful means of rural reconstruction and development. Development of decentralized sector also improves the standard of living of people in backward regions. हमने पढ़ा था अभी लास्ट चैप्टर में ही कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जब हम बनाते हैं तो हम इस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरीके की वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, उनके बीच रिलेशंस हमेशा से अच्छे हों, और किसी भी तरीके का जो स्मॉग या डस्ट या पोल्यूशन या वो कोई भी तरीके का होता है तो हम उस चीज़ का ध्यान रखें कि वो क्या हो, वो इको फ्रेंडली हो, हमारी किसी भी चीज़ को डैमेज ना कर रहे हो. Next is optimization of capital. Small scale firms require less capital per unit of output and therefore greater output can be obtained from small investment. ओके, से एक सर्वे वगैरह दिया हुआ है इसमें. स्मॉल फर्म्स ऑल्सो प्रोवाइड क्विक रिटर्न्स. ओके, क्या दिया है कि स्मॉल फर्म ऑल्सो प्रोवाइड क्विक रिटर्न्स आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट gestation period in India where the rate of capital formulation is low. Small scale industries are very suitable. Okay, so in this point the point is optimization of capital, यानी कि स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज होती हैं, अभी हमने पढ़ा कि उनकी क्या है, एक लिमिट होती है कि वो कितना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और उस अपनी सर्विस पे कितना लगा सकते हैं. ओके, ठीक है. तो स्मॉल फर्म्स ऑल्सो प्रोवाइड क्विक रिटर्न्स आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अकाउंट. अपने वो पूरा बनाने के बाद भी उनको क्या होता है कि उनके जो भी रिटर्न्स होते हैं वो उनको रिटर्न करने होते हैं एक शॉर्ट पीरियड जो भी उनको एक स्पैन ऑफ टाइम दिया होता है. ओके, next is mobilization of local resources. Small scale industries facilitate mobilization and utilization of local resources and skills which might otherwise remain latent or unutilized. Small business promotes a new cadre of small entrepreneurs and self-employed and encourage local talent. यानी कि जो स्मॉल स्केल बिजनेस होता है, जैसे हम कह सकते हैं वीविंग, ठीक है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये पेंटिंग, कार्विंग, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें जो ये स्मॉल बिजनेस होते हैं, इनको क्या है, इनको बढ़ावा देते हैं, ठीक है, कि हम इन चीज़ों को क्या है, हम आगे प्रमोट कर सकें, हम आगे इन चीज़ों को मार्केट में हम बेच सकें, ठीक है. द ग्रोथ ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज हेल्प्स इन टैपिंग लेटेंट रिसोर्सेज लाइक एंटरप्रेन्योरल स्किल्स एंड स्मॉल सेविंग स्पेशली इन रूरल एरियाज़. यानी कि रूरल एरियाज़ में जो ऐसे बहुत सारे टैलेंट होंगे कि जिनके पास ये जिनको इस तरह के काम आते होंगे, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या करते हैं, इन लोग को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अपने इस तरह के टैलेंट को वो यूज़ करें और उसी चीज़ को बना के वो अगर इंडिया में प्रोडक्ट को बेचेंगे तो इससे क्या होगा, उनको भी एक हेल्प मिलेगी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी अपना प्रॉफिट मिलेगा. ओके, सो आज पॉइंट 4 तक का मैं एक्सप्लेन करती हूँ. रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स आई एक्सप्लेन टुमारो क्लास. ओके, सो जस्ट गो थ्रू द फुल चैप्टर. एक बार अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा कि इंडस्ट्रीज़ में क्या है, जेनेटिक एंड डोंट फॉरगेट टू मेक अ चार्ट. ओके, तो आपको थोड़ा अच्छे से याद होगा इंडस्ट्री, कॉमर्स, जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव, दोनों में क्या डिफरेंस था, ये ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री. एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ, कितने मार्क्स का आता है, तो उस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा. ओके क्लास, सो टुडे दैट्स फॉर ऑल. And don't forget to like, subscribe and forward this video to other students. Thank you.